Okay, very good evening to all of you. Beta, we have already started with electrochemistry. We have done electrolysis and conduction in solution. Today, I'm going to do this part to electrogenesis. Beta, when you talk on the phone, so inside this there is a battery, and there are certain reaction taking place in the battery, and that is generating what chemical energy, which is getting converted into electrical energy, and you are able to speak. Then sound energy. So in this case, what is going to happen, beta? In your house, we use that ever-ready cell and all. So what happened inside that? There are chemicals. They react when we connect it to wire, and they produce what? Electricity. So here, chemical energy is going to get converted into what? Electrical energy. This reaction happens on its own. So we call it as which reaction? Spontaneous reaction. Which reaction? Spontaneous, right? तो खुद से होगा बेटा ये. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोजेनेसिस. एग्जांपल ड्राई सेल, वो जो पेन सेल हम लोग यूज करते हैं ना, एवरेडी ड्यूरा सेल वगैरह, पता है ना बेटा, घड़ी में आता है इतना रेड कलर का अलग अलग. सो नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू स्टडी इन इलेक्ट्रोजेनेसिस दैट आई एम गोइंग टू शो यू. मेरे बुक में मेरे नोट्स में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने ये चेंज किया. वी हैव चेंज द सीक्वेंस. We are going to do with now directly electro. Look, this part 2 I've written. We did part 1 and part 3 in the beginning. Today we are going to do. It is also known as galvanic cell or voltaic cell. In this, chemical energy is converted into, it is spontaneous. अच्छा, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है. हम लोग बेटा बैंक से क्या लेते हैं? लोन. व्हाट वी टेक? लोन. सो एल मीन्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड. ओ इज ऑक्सीडेशन. ए इज एनोड. एंड एनोड हियर इट इज विच टर्मिनल? नेगेटिव. रिमेंबर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था? पापा. इट वाज पॉजिटिव. यहाँ पे एनोड क्या होगा? बट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा बेटा. एनोड पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा? ऑक्सीडेशन ओनली. Clear? So we have started with this part, galvanic cell. Galvanic में क्या होगा बेटा? Chemical energy will get converted into electron. Everready cell हम लोग होता है ना बेटा, बैटरी में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं, right? So here what is important thing you have to remember? Low, left hand side, L for left hand side, O for oxidation, anode. Here anode will be negative. Anode will be, इसका अपोजिट करो. लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा बेटा? आर आर सी पी. राइट हैंड साइड विच रिएक्शन विल टेक प्लेस? रिडक्शन. सी इज कैथोड एंड कैथोड हियर इट इज पॉजिटिव. इन इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड वाज पॉजिटिव. इन इलेक्ट्रोजेनेसिस इसमें केमिकल रिएक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा. हियर इट विल बी उल्टा. बट एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा. एनॉक्स एंड रेड कैट. बट एनोड हियर इट विल बी व्हाट? नेगेटिव. अब बेटा देखो, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस आई एम गोइंग टू डू नाउ. Beta, there is two container. There are two containers. This is me. This is a bucket. And this is me. M. I am a metal M. I am a metal M. And I'm going to jump into my own solution. Into my own solution. This is my own solution. So it will be what, which ions will be present here, beta? My own ions, right? So Mn plus. Imagine there is a big drum. Inside that my ions are there and I'm jumping into it. I'm jumping in. Now there is a two possibility. What will happen? Two process will take place. My ions will try to pull me inside. My ions will try to pull me inside. So the solution is calling me towards the solution, no, beta? So there are two types of pressure will take place. First pressure is known as beta PS, I'll write. PS means what? Solution pressure. PS is what beta? PS is solution pressure. Solution pressure. Then there is two things will happen. Either my solution will pull me towards itself, or I will pull solution towards me. I will pull, right? I will pull solution towards me. Solution will try to pull me inside, then it is which pressure? Osmotic. But if I will pull the ions towards me from the solution, then it is known as osmotic pressure. Then it is known as which pressure? Now let us say there will be two possibilities. Either solution pressure will be more or my pressure will be more. Osmotic pressure will be more. First, let us do the first condition. If PS is greater than P0, तो मैं कहां पे जाऊंगा? Tell me, where will I go? PS is greater than P0. So what will happen? Solution मुझे अपनी तरफ बुलाएगा.
सो मैं यहाँ पे मेटल था ना, आई वॉज हु बेटा, टेल मी, आई वॉज व्हाट, मेटल। मैं तुमको एग्जांपल भी देता, सपोज आई एम जिंक मेटल, आई एम विच मेटल, जिंक, एंड दिस इज माय सोल्यूशन जिंक आयंस। बेटा अकेला जिंक आयन नहीं होगा, जिंक सल्फेट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। So now if solution pressure is more, where I will go, tell me beta, I was what beta, metal solid, right? I was metal solid, I was metal solid। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना चाहिए। PS इज ग्रेटर देन P0, तो सोल्यूशन मुझे अपनी तरफ बुलाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेटल से अंदर आ जाऊंगा और क्या बनाऊंगा, Mn प्लस आयन। So I was metal solid. I was on rod. From rod, where I went into, tell me, in solution. In solution. And what I liberate? A loss of electron हो रहा है ना यहाँ पर. So what will happen? I liberate electron. But where I'll keep this electron? I'll leave the electron on my rod. मेरे पे छोड़ दूंगा इलेक्ट्रॉन। मैं आयंस बन के अंदर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे रॉड पे आ जाएगा बेटा। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर वेयर, ऑन rod. So suppose beta, if I am zinc metal, I am which metal? So from zinc, from rod, I will go into Zn2 plus solution, and how many electrons I will leave on the rod? 2 electrons. Now tell me, rod ने कौन सा डेवलप चार्ज डेवलप किया यहाँ पर? On rod, what you can see? Electron, no? So it will develop with charge negative. It will develop with charge negative. With charge it will develop. Sorry, beta. Here we do not connect to battery, huh, beta? Because here chemical energy will produce electron. And I have connected here bulb. What I have connected here? Bulb. Okay? Bulb. So I will develop here with charge. Bolo, beta. Come on. Acha, now, beta, when I am taking this, here earlier what was there? I am saying zinc, but actually it was zinc sulfate, ना बेटा? तो सपोज यहाँ पे मेरे पास 50 जिंक था और 50 सल्फेट था, बट अभी क्या हो रहा है, फ्रॉम रॉड वन जिंक इज कमिंग इनसाइड और नॉट, टेल मी। So here which charge it will develop outside, what charge will be there in the solution? Ion, positive ions are increasing, na beta? From zinc I am forming zinc ions, so outside which charge will be there? Positive. Which charge will be there? And on the rod there is what beta? So here beta, what will be there? Potential difference will be developed or not? Acha, which reaction is taking place here? Loss of electron is happening or not? Tell me. So it is what beta? Oxidation. Which reaction is taking place? ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। व्हाट इज बेटा? डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ। Okay, and here beta, what will happen? Here all negative charge is there, and here which charge is there? Positive. On the rod it is negative. Outside the solution it is. So electrical double layer banega. If there is an electrical double layer, then there will be potential developed, and this potential is developed due to which reaction? Oxidation. Then we call it as standard oxidation potential. How to read this? Standard oxidation potential. Clear? सेकेंड केस, मैं हूं, सपोज मैं कॉपर हूं और मैं एक बकेट है उसके अंदर वापस मैंने जंप मारा, तो दिस वाज मी। आई एम राइटिंग इट एज N1 solid, or I will write it as copper solid. And here there are which ions? My own ions are here. So I am what beta here? M1, sorry, M1, whatever is the valence. Basically, I am what? Copper ions. खाली copper ions होगा क्या? नहीं. Basically, it is copper sulfate. It is what बेटा? यहाँ पे अभी मैं उल्टा करूंगा. What condition I'll take बेटा? किसको अभी मैं ज्यादा लूंगा, बोलो बेटा? Osmotic pressure is more. What is more बेटा? Osmotic pressure is more. So क्या होगा बोलो बेटा here? ए, पहले मेरे को सोल्यूशन अंदर बुला रहा था, अब मैं सोल्यूशन को अपने पास बुला रहा हूं। सोल्यूशन के अंदर कौन है? कॉपर आयंस है कि नहीं, बोलो बेटा? विच आयंस आर देयर? अरे, Mn plus copper ions है ना। So now what will happen? These ions will go here.
अच्छा यहां से कौन पास हो रहा है बोलो, यहां से हु इज पासिंग फ्रॉम हियर, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन आर गोइंग हियर और नॉट, टेल मी। तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर फ्रॉम हियर। अच्छा यहाँ से कौन जा रहा है, Mn प्लस जा रहा है कि नहीं, अरे बोलो। तो यहाँ पे क्या होएगा, व्हाट विल हैपन हियर, M1n plus will gain an electron and it will become M metal. Hey, this is going from where, from बोलो solution, and it will form M solid, and this will form on what, on rod. तो सपोज इफ आई वॉज कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस यहाँ पे से कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, इधर पे जा रहा है, इधर पे जाएगा, एंड इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर, दिस इलेक्ट्रॉन आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, कैन यू सी, and I'll become copper. So here what is happening, gain of electron or loss of electron, so we call it as which process, reduction. Which process, reduction. Gain of electron is also known as electronation. What it is called as, now tell me, hey Shobit beta, will this bulb glow, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो गया, will this bulb glow, अच्छा wait before that one important thing I forgot to tell you, ए यहाँ पे से बेटा कौन जा रहा है, यहाँ पे से सोल्यूशन में से कौन जा रहा है बाहर, कॉपर, अरे कॉपर सल्फेट में से कौन यहाँ पे गया बोलो बेटा, कॉपर इज गोइंग हियर। तो सोल्यूशन में सपोज बेटा 50 कॉपर थे एंड 50 सल्फेट, सो कॉपर आर गोइंग, तो नंबर ऑफ कॉपर इज डिक्रीजिंग बट नंबर ऑफ सल्फेट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज रिमेनिंग सेम। 50 कॉपर था, 50 सल्फेट था, 10 कॉपर चला गया, तो अभी सल्फेट कितना है, 50 है, कॉपर कितना है, 40, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हियर विच चार्ज इट विल डेवलप बेटा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हियर विच चार्ज इट विल डेवलप बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा क्या होगा बेटा, विच चार्ज विल बी हियर बेटा, पॉजिटिव ना बेटा, बिकॉज कॉपर इज गोइंग इधर ना बेटा, कॉपर 2 प्लस इज गोइंग हियर ना, तो इट विल डेवलप विच चार्ज, तो ये जरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव। ओके नाउ ए टेल मी, हियर देयर इज नेगेटिव, हियर देयर इज पॉजिटिव, सो देयर इज अ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज देयर, देन व्हाट विल बी देयर, पोटेंशियल विल बी डेवलप, so this potential is developed due to which reaction, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा, रिडक्शन, सो वी कॉल इट एज विच पोटेंशियल बोलो बेटा, स्टैंडर्ड, ई जीरो लिखा मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हाफ सेल, राइट हैंड साइड को क्या है, एक हाफ सेल, दोनों को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। नाउ टेल मी शुभित, विल दिस बल्ब ग्लो, ओके फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, टू फ्लो ऑफ करंट सर्किट शुड बी कंप्लीट, इज दिस सर्किट कंप्लीट, सोच के बताओ, वेर इट इज एम्प्टी, टेल मी, अरे ये दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं बेटा, ये खाली बाहर से कनेक्ट किया, अंदर में कुछ कनेक्ट किया क्या, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। अभी नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कनेक्ट दिस टू और नॉट, टेल मी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई हैव टू कनेक्ट दीज टू, सो वी आर गोइंग टू नाउ कनेक्ट दीज टू, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर, लुक, बुक से पढ़ोगे कुछ नहीं समझेगा बेटा, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग नाउ दिस टू, ओके हियर दिस इज अ यूट्यूब, दिख रहा है कि नहीं, उल्टा यूट्यूब है कि नहीं, this green wala thing is in ulta YouTube. In this beta I fix here something I kept here, what inside this tube, what is there, I'll tell you, two things are there. First, here there is a glass wool plug, what is there, glass wool plug at both the end, okay, it is inverted YouTube, u ऐसा होता था ना, उसको मैंने उल्टा कर दिया, ऐसा ऐसा होता है ना u, inside this we fill solution, which solution we take, there is agar agar gel होता है अंदर, यहाँ पे ग्लासफुल प्लग है, और इसके अंदर हम लोग ने क्या लिया है, देखो इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव टेकन हियर, क्या कलर लूं, आई हैव टेकन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, व्हाई आई हैव टेकन KCl ओनली, और आई कैन टेक अमोनियम क्लोराइड आल्सो बेटा, KCl, व्हाई, एंड दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट बेटा, दिस ग्रीन ट्यूब इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, क्या कहते हैं इसको बोलो बेटा, सॉल्ट ब्रिज, इट इज इन्वर्टेड U tube, glass U tube containing what, saturated KCl solution,
and along the end of the two tubes, what is there? Beta, glass wool plug, and it is filled with agar-agar gel. What is the speciality of this? It will allow the passage of only ions. It will allow the passage of only ions and not allow the solution to fall into the respective electrode. Clear? अच्छा, this is your negative terminal. Negative को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? लोन. लोन. Negative here it is what बेटा? Anode. Right? And here this is positive. Here it is positive is known as what beta? Cathode. Now what is the use of this? Okay, अभी अच्छे से देखो तन्वी बेटा. Here what was happening? मैं zinc rod था. I was going inside. So here positive ions are increasing or not? Tell me. तो बेटा अगर और एक जिंक को आने का है वापस, तो अगर यहाँ पे बहुत सारा जिंक होगा तो ये और एक जिंक आ सकता है क्या यहाँ पर? तो मुझे बाहर वाला पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कि नहीं? तो उसमें कौन आएगा पता है क्या? यहाँ पे से कौन आएगा? ये KCl में से हु विल एंटर हियर? Cl माइनस विल पास थ्रू दिस. व्हाट Cl माइनस विल डू बेटा? जो एक्सेस Zn2 प्लस था उसको निकाल देगा. तो ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा? तो, क्योंकि अगर बहुत सारा पॉजिटिव रहेगा तो वापिस नया Zn अंदर आ पाएगा क्या? क्लियर? ओके. यहां पर क्या हो रहा था बोलो बेटा? आरुष, पहला कॉपर 50 था, सल्फेट 50 था. यहां से क्या आ रहा था? कॉपर अंदर जा रहा था. तो 40 कॉपर हो गया, लेकिन सल्फेट कितना हो गया? 50. मतलब यहाँ पे बाहर कौन ज्यादा है? ये नेगेटिव ज्यादा है कि नहीं बोल बेटा? तो ये नेगेटिव को मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना बेटा. तो कौन न्यूट्रलाइज करेगा? यहाँ पे से KCl में से कौन जा रहा था? यहाँ पे Cl माइनस. तो यहाँ पे कौन जाएगा बोल? वेरी गुड. दिमाग में जा रहा है ना बेटा? मैं एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ. तो ये यूट्यूब में मतलब ये सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? इट इज अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस. अच्छा, ये सॉल्ट ब्रिज दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने देगा क्या? इट कंप्लीट्स द सर्किट. राइट. अच्छा, एंड प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. यहाँ पे जो पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा था उसको भी प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा, व्हाई वी यूज KCl ओनली? तो मैं बताता हूँ. एक ऐसा टर्म होता है, दे हैव पोटेशियम एंड क्लोराइड, दे हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर. व्हाट दे हैव? सेम ट्रांसपोर्ट नंबर. का मतलब क्या होता है? जिस स्पीड से पोटेशियम दौड़ेगा, with the same speed chloride ion will also run. So they have same speed. So what will happen? They will move in the same speed. Is this clear? अच्छा, ये समझा यहाँ पे से ये Cl माइनस ही क्यों गया? यहाँ पे से K प्लस ही क्यों गया? दिमाग में जा रहा है. अच्छा. राइट. अब ये बल्ब तेरा क्या होगा बेटा? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? द करंट फ्लोज इन द आउटर सर्किट इन द फॉर्म ऑफ. बोलो. आउटर सर्किट में कैसा हो रहा है? आउटर सर्किट में इट इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंटरनल में ये इंटरनली पास हो रहा है कि नहीं? इंटरनल सर्किट में कैसे फ्लो हो रहा है? वेरी गुड. आयन. ठीक है. ओके. राइट. सो दिस इज योर एंटायर नर्स्ट थियोरी. व्हाट इट इज बेटा? अच्छा बेटा, ये रिएक्शन में मैंने बाहर से कोई करंट पास किया था क्या? बोलो. शोभित बेटा, डिड आई पास एनी करंट फ्रॉम आवर? यार ये क्या है? एनालाइज. तो बेटा ये हो ही नहीं रहा है. क्यों? वो तो नहीं आएगा क्या? देखना बेटा. Did I pass current from outside? So what is happening, beta? It is happening on its own or not? Tell me. Okay, so it is a spontaneous process or not? Tell me. Very good. So spontaneous है ना बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Chemical energy is getting converted into what? Electrical. Chemical energy is getting converted into electrical. Have you understood why this has developed negative terminal? Oh, beta, Suni, why it has developed negative terminal? Why it has developed positive? Clear. Now the bulb will glow. Are you getting it? Clear. Chemical energy. So reaction is taking place and which is. अच्छा बेटा, one more condition अगर मैं तो आपने how many cases we studied here बेटा? First case was what बेटा? First case. This was my case one. This is my case two. Are you getting it or not? Tell me. Suppose बेटा मैंने अगर अभी हाँ अभी ये सेल बन गया बेटा. This entire thing has become cell. अच्छा, what is the role of salt bridge? It helps to connect two half cell, right? It prevents the mixing of two different electrolyte and it maintains the electrical neutrality in both the side. Are you getting it or not? यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा था तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था कि नहीं? राइट. क्लियर.
अच्छा, केस 3 बेटा, इफ आई गिव यू केस 3, सपोज दिस इज माई कंटेनर, this is my rod, I am there and this is my solution beta, I'm jumping into this. Now here beta case 3, PS is equal to P0, जब दोनों सेम होगा तो कुछ होगा क्या, बोलो बेटा, टेल मी। अरे को मैं अंदर जाऊंगा क्या, नहीं, मेरा भी फोर्स और वो मेरा पुल करने का भी फोर्स और सोल्यूशन का भी सेम है, तो कुछ होगा क्या। एमसीक्यू में आएगा तो विच इलेक्ट्रोड विल बी डेवलप बेटा, नल इलेक्ट्रोड। विच इलेक्ट्रोड इसको बोलेगे बेटा, नो चार्ज, नथिंग विल हैपन, नोबडी विल मूव, दिस इज योर केस 3, दैट इज व्हाट बेटा, नल इलेक्ट्रोड। हैव यू अंडरस्टूड दिस, नल इलेक्ट्रोड। अरे बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्लियर, इधर है भाई, नल इलेक्ट्रोड। चलो, डन। अच्छा बेटा, नाउ यू टेल मी बेटा, हाउ आई रिप्रेजेंट दिस, टेल मी हियर हु वाज देयर, हियर कौन था बोलो बेटा, जिंक। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, जिंक। यहाँ पे कौन है बोलो बेटा, जिंक आयन। सो जिंक सॉलिड है, ये कहां पर है, ए, आयंस इज लिक्विड। तो हाउ आई रिप्रेजेंट दिस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बोलो बेटा, जिंक। फिर ये किसके कांटेक्ट में था बोलो बेटा, जिंक आयंस। तो व्हाई वी राइट दिस सिंगल लाइन, दिस रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेट। लेफ्ट में कौन था आरुष बेटा, दिस वाज जिंक सॉलिड, दिस इज जिंक आयंस लिक्विड। राइट हैंड साइड में कौन है बोलो बेटा, कॉपर सॉलिड। कॉपर किसके अंदर इमर्ज्ड था बोलो बेटा, कॉपर आयंस। कभी भी बेटा आयंस बाहर हम लोग नहीं लिखते, तो पहले बाहर कौन आएगा, कॉपर सॉलिड था, तो किसके कांटेक्ट में था बोलो बेटा, कॉपर आयंस। अब इन दोनों को हम लोग ने किससे कनेक्ट किया था बोलो बेटा, अरे ग्रीन वाला पार्ट देखो, यहाँ पर एक ये वाला हिस्सा और एक ये, इसको क्या बोलते थे बोलो बेटा, तो बेटा सॉल्ट ब्रिज, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो फॉर सॉल्ट ब्रिज व्हाट वी राइट, ऐसा टू वर्टिकल लाइंस। सो टू वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट बेटा, टेल मी, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट बेटा, एनोड। एनोड इज विच टर्मिनल बेटा, नेगेटिव। दिस इज व्हाट, कैथोड। कैथोड इज व्हाट, पॉजिटिव। कैथोड इज व्हाट, पॉजिटिव। गॉट इट। नाउ व्हाट इज दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ, या फेज बोल सकते हैं, चेंज ऑफ फेज मतलब स्टेट। अरे ये सॉलिड है लिक्विड है, ये सॉलिड है लिक्विड है, आर यू गेटिंग, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, ओके। नाउ यहाँ पे वॉट एवर मैंने जिंक का कोई सोल्यूशन लिया रहेगा, उसका कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं, तो ऐसा मैं ब्रैकेट में लिखूंगा C1, सपोज ये 1 मोलार है तो मैं यहाँ पे 1 मोलार लिखता, यहाँ पे C2, इसका भी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट। सो दिस इज हाउ द सेल रिप्रेजेंटेशन इज डन। अच्छा, अब ये ओवरऑल कितना वोल्टेज ये जनरेट करेगा, आप लोगों ने घड़ी में सेल लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। अगर कार में बैटरीज होती है बड़ी बड़ी, बाइक में इतना बैटरी होता है, एक्साइड बैटरी, एमरॉन बैटरी, ट्रक्स में इतना बड़ा होता है बैटरी, उस पर वोल्टेज लिखा रहता है। तो वो वोल्टेज लिखा रहेगा था मतलब क्या, उसके अंदर जो केमिकल्स है दे विल रिएक्ट अमंग देमसेल्फ एंड टू जनरेट दैट मच पावर, वोल्टेज। ओके, सो अभी ओवरऑल वोल्टेज ये कितना बनाएगा, लेफ्ट में क्या हो रहा है बोलो बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट में क्या हो रहा है बोलो, स्टैंडर्ड। तो टोटल मेरा कैसा होगा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन समझा, व्हाट वी डिड, दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट योर, लेफ्ट में जिंक था, दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार बता दो, दिस वाज जिंक, इट इज इन कांटेक्ट विद, देखो दिस वाज माय जिंक, इट इज कांटेक्ट इन विद Zn2+। ये सॉलिड है लिक्विड है, तो इस समय मैंने वर्टिकल लाइन लिखा, ये सही कर दे। राइट में क्या था बोलो बेटा, कॉपर था, कॉपर और कॉपर आयंस, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो देखो चेंज ऑफ स्टेट, कॉपर एंड कॉपर, कभी भी बाहर की तरफ आयंस नहीं होगा। अभी दोनों को कनेक्ट किया किया, बीच में सॉल्ट ब्रिज था कि नहीं बेटा, ये देखो एक और एक, ये सॉल्ट ब्रिज है ना बेटा, एक ही सॉल्ट ब्रिज है, लेकिन ऐसा मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ओवरऑल वोल्टेज कितना पैदा करेगा, उसको हम लोग लिखते हैं E0 सेल। व्हाट डू वी कॉल दिस E0 सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, और वी कॉल इट एज बेटा EMF, स्टैंडर्ड EMF, इट्स EMF
स्टैंडर्ड ईएमएफ। लेफ्ट में क्या हो रहा था बोलो बेटा? अरे लेफ्ट में कौन सा पोटेंशियल था बोलो? ऑक्सीडेशन। राइट में क्या था? रिडक्शन। तो हम दोनों को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे बेटा। ये देखो E0 ऑक्सीडेशन वाज टेकिंग प्लेस वेयर? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन था तुम्हारा? एनोड। प्लस E0 रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे हो रहा था बोलो बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था? क्या था? अब बेटा ये दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे, हमको जो भी वैल्यू दिखाई देगा बीच में, दैट विल बी वोल्टेज, ईएमएफ ऑफ द सेल। बट बेटा इन पूरा चैप्टर, इन योर एंटायर चैप्टर, दे हैव नॉट गिवन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोल बेटा? ए, व्हाट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? बट इफ आई वांट टू राइट इन रिडक्शन देन इट विल बी E0 माइनस, आएगा ना बेटा, माइनस E0 रिडक्शन। दिस इज व्हाट बेटा? लेफ्ट हैंड साइड ओनली। साइड विल बी लेफ्ट हैंड साइड ओनली, and this will be anode. Why I have written this? Because E0 oxidation is minus of E0 reduction. On the right hand side, there is E0 reduction only, ना बेटा? अब मुझे अगर रीअरेंज करने हैं तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये E0 इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव को मैं पहले लिखूंगा कि नहीं बोलो? E0 रिडक्शन राइट हैंड साइड माइनस, अब ये माइनस है ना बेटा, तो माइनस E0 रिडक्शन लेफ्ट हैंड साइड। इज दिस क्लियर? ओके, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड ईएमएफ। दिस इज योर स्टैंडर्ड। क्या गिरा? क्या गिरा? क्या गिरा बेटा? मैं तुम्हारे ग्रुप में कलरफुल फोटो डालते जा रहा हूँ। ये नोट्स में भी है, मैं बता रहा हूँ अभी तुमको। ओके, चलो। नाउ अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन लेफ्ट में जाएगा कौन राइट में जाएगा? राइट ना? लुक बेटा, इफ यू सी दिस, माय सी इनटू माय नोट्स बेटा। अरे वो कहाँ गया? लुक, दिस इज व्हाट आई हैव शोन टू यू। कैन यू सी दिस बेटा? ये ऊपर ये नर्स थियरी था बेटा, देख रहा है? पीएस ग्रेटर यहाँ पे सब मैंने दिया बेटा, देख ना, ऑन रॉड, इन सोल्यूशन, ऑन रॉड, दिख रहा है, दे रहा है कि नहीं? फिर ये सॉल्व ब्रिज क्यों आया, डायरेक्ट देख के नहीं समझेगा, इसलिए मैंने वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। आर यू गेटिंग इट? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज द रिएक्शन आई हैव रिटन। आर यू गेटिंग इट? दिस इज एनोड रिएक्शन, दिस इज, आई हैव रिटन द सिंबल ऑफ द पीएस सोल्यूशन प्रेशर, दिखा नोट्स में? राइट ना बेटा? लुक बेटा, दिस इज Zn एंड दिस इज Zn2 प्लस। Zn2 प्लस नहीं होता है, Zn2 सल्फेट होता है बेटा। दिस इज कॉपर, दिख रहा है यहाँ पे? कॉपर एकदम लाइट है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो वहाँ पे, दिस इज कॉपर 2 प्लस। बेसिकली कॉपर 2 प्लस नहीं होता है, कॉपर सल्फेट होता है बेटा। आर यू गेटिंग? दिस इज Zn, लाइट होगा तो बेटा डार्क कर देगा, दिख रहा है वहां पे बेटा? तन्वी बेटा, इज इट विजिबल? ओके, मैंने केस 3 भी दे दिया, नल इलेक्ट्रोड वाला। अभी आपको समझा ये दोनों? ये सॉल्व ब्रिज क्या है वो भी समझाना बेटा। फिर बेटा आपको ना, मैंने टोटल पावर कितना वो जनरेट करेगा, दैट आई विल गिव। ओके, लुक, E0 सेल इज व्हाट बेटा? बोलो, कौन चला गया? हमनी है, जोया है, ये थी, चली गई। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, बट बेटा मैंने क्या बोला था पूरे चैप्टर में बेटा? ऑक्सीडेशन होता, ये ऑक्सीडेशन E0, ऑक्सीडेशन E0 ऑफ माइनस रिडक्शन। तो लुक बेटा, अभी ये रिडक्शन को पहले लिख और इसको बाद में लिख, तो व्हाट विल गेट? E0 cell is equal to reduction. Generally बेटा this value will be bigger and this value will be smaller generally, हाँ बेटा। अच्छा, कभी भी कोई भी ऐड करने के बाद ये देखो E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब दैट रिएक्शन इज पॉसिबल। अगर नेगेटिव आया तो दैट रिएक्शन इज नॉट। ना हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन राइट में आएगा कौन लेफ्ट में आएगा? हाउ विल यू कम टू नो?
हाउ विल यू कम टू नो कि जिंक ही लेफ्ट में लेना था मुझे, यहाँ पर Zn को ही हम लोगों ने लेफ्ट में क्यों लिया, कॉपर को ही राइट में क्यों लिया? तो बेटा मैं तुमको एक बता था, आप लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है कि नहीं लो स्टैंडर्ड में? व्हाट आर द रिएक्टिविटी सीरीज, रिमेंबर बेटा? करीना ने कार, अभी वो सीरीज को हम लोग बेटा उल्टा लिखते हैं। करीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट, याद है कब? अच्छा अच्छा बेटा, अभी देखने का, इसमें कॉपर यहाँ पर है, जिंक कहाँ पे था इधर? रूल क्या है पता है क्या? जो राइट में होगा ना बेटा, ऊपर, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को उल्टा लिखने का, जो ऊपर रहेगा दैट विल बी ऑलवेज ऑन विच हैंड साइड? राइट हैंड साइड, एंड द लोअर वन विल बी ऑन द विच हैंड साइड? अच्छा अभी तुमको पता है वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बना था? तो आपको बोलेगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको पता ही नहीं था, आपने खाली 10th में पढ़ा था ना, वो 9th में या 10th में रिएक्ट, अभी वो मैं बताता वो सीरीज कैसे बना। बेटा पीरियोडिक टेबल में देयर आर सो मेनी एलिमेंट, हर एक का कुछ का खुद का एक ई जीरो पावर होता है, ई जीरो रिडक्शन हर एक का पावर होता है। तो वो लोगों ने ढूंढा, कैसे ढूंढा? अच्छा आपको पता है हम लोग एटॉमिक वेट अगर किसका ढूंढते थे तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको रेफरेंस लिया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, तो अगर मैंने बोलता सोडियम का वेट इज 23, तो सोडियम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन? 23 टाइम्स। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया पता है क्या? एक क्या यूज किया पता है क्या? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया? किसी का भी अगर मुझे पोटेंशियल ढूंढना है तो आई टेक अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, विच इलेक्ट्रोड? और हम लोग रेफरेंस के लिए एटॉमिक वेट में भी स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लेते थे, ये लोगों ने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया रेफरेंस के लिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसका नाम क्या था बोलो बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड whose potential is known as reference electrode। वो लोग ने क्या लिया? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस व्हाट बेटा? एस, दिस इज एच एंड दिस इज ई, तो इसका दूसरा नाम क्या है? एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो लोग ने क्या लिया? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, और हाइड्रोजन का वो लोग ने क्या एज्यूम कर दिया बेटा? वैल्यू जीरो। कितना वैल्यू फिक्स कर दिया? जीरो। हकीकत में जीरो नहीं होता था, बट वो लोग ने क्या बोला? जीरो ले लेते इसको, आर्बिट्रली फिक्स्ड है जीरो। उसका ई जीरो कितना है हाइड्रोजन का? आर्बिट्रली, आर्बिट्रली फिक्स्ड जीरो। ई जीरो हाइड्रोजन का कितना हो गया बोलो बेटा? जीरो। तो सपोज बेटा ये मेरा हाइड्रोजन है, ए सुन बेटी, ये हाइड्रोजन है, अभी मैं एक अननोन मेटल, तो मुझे आप हम दोनों को कनेक्ट कर दो, हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल वोल्टेज आएगा कुछ तो। ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है? मेरा ई जीरो प्लस इसका ई जीरो मिलके वो ओवरऑल वोल्टेज आएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग? अगर मैं दो सेल बनाता तो ओवरऑल पावर जनरेट होगा, तो हाइड्रोजन का मैंने जीरो एज्यूम कर दिया, लेट अस से आंसर 1 आ रहा है, तो ई सेल विल बी व्हाट? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड करके, तो आंसर तेरे को पॉजिटिव भी आ सकता है या तो क्या आ सकता है? नेगेटिव भी। तो चलो मैंने जिंक का लिया, फिर किसका लिया? मेरे को हटा के हमेशा हाइड्रोजन को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, व्हाई? बिकॉज दिस इज अवर, अरे बोलो, दिस हाइड्रोजन इज आवर व्हाट? अवर रेफरेंस। मैंने पहला जिंक लिया, फिर मैंने क्या लिया? कॉपर लिया, फिर एल्यूमिनियम लिया, हर एक के साथ ऐसा क्लब किया। क्लब करने के बाद मुझे वहां पे ओवरऑल पावर दिखाई देगा, वो ओवरऑल पावर मुझे मिलेगा, उससे आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, बिकॉज आई नो नोन, हाइड्रोजन इज नोन, दिस इज अननोन, दोनों को कनेक्ट करने का वो जो वैल्यू है, तो ऐसा वो लोग ने चार्ट बनाया। क्या बनाया? जिसका हायर वैल्यू आ रहा था, वो जिसका हायर वैल्यू आ रहा था, मतलब ऐसा ऐसे में रफली लिख रहा हूँ बेटा, अब वो मत ऐसे मत कर लेना। +3 +2, आर यू गेटिंग इट? ऐसे समझ में आ रहा है ना बेटा? 0 -1 -2 -3 ऐसे। तो जिसका बड़ा वैल्यू आता है वो किस में जाएगा? हमेशा रिडक्शन में। जिसका लोअर वैल्यू होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये सीरीज बनाया हम लोग ने, किसको लेके ये सीरीज बना पूरा बोलो बेटा? हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके बनाया, इसलिए उसका नाम क्या है बोलो बेटा? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके है। और इससे ये लोग ने ये सीरीज बनाया, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ईएमएफ सीरीज। विच सीरीज बेटा? and in this have they have only which value? They took only which value? Reduction potential. Which potential they took? So what is EMF series? अगर आपसे आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो how will you write? बोलो, what is EMF series? टन टन टन। देखो ऐसा ये सीरीज है बेटा, ये टेक्स्ट बुक में भी आई ऑल्सो शो यू, डोंट वरी।
ये देखिए, व्हाट इज रिटर्न बेटा, टेल मी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ सीरीज। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें आप देख रहे हैं बेटा, हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा। देखिए बेटा, नीचे आएगा बेटा, देखिए ना, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, याद आ रहा है कि नहीं? फिर भी है। इसमें सारे एलिमेंट हम लोग ने डाल दिए बेटा। अच्छा आरुष बेटा, यहाँ पे देख, वैल्यू किसका, एक ऊपर वाले का वैल्यू क्या है, बोल बेटा। ये E0 वैल्यू कैसे आया अपने को? हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर, हाइड्रोजन का हम लोग ने कितना एज्यूम किया था, बोलो बेटा। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, दिख रहा है? अरे, ये वैल्यू देखो, ये हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, बोलो बेटा। 0, दिख रहा है कि नहीं? जो ऊपर जा रहा है वो किसमें जा रहा है, प्रोसेस क्या है, बोलो बेटा। रिडक्शन। जो ऊपर वाला जिसका भी E0 वैल्यू ज्यादा, वो किसमें जाएगा? रिडक्शन में। अच्छा, जो बेटा रिडक्शन में जाता है वो पावरफुल कौन सा होता है बेटा? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एजेंट कौन सा होगा? और वो प्रोसेस किस में जाएगा? प्रोसेस इज रिडक्शन। अच्छा, जो नीचे वाला होगा वो किस में जाएगा, बोलो बेटा। बट एजेंट कौन सा होगा, पावरफुल? अब बेटा एग्जाम में आपको ना दो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। आई विल गिव यू, कोई भी दो को उठा के मैंने दे दिया, सपोज बेटा मैंने आपको यहाँ पे से ना क्या दे दिया, ये ये दे दिया, और यहाँ पे आपको ना कॉपर दे दिया, तो आप किसको राइट में रखोगे, किसको लेफ्ट में? बोलो। ऊपर वाला कहाँ पे जाएगा? राइट में। कॉपर तेरा कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट में। ऊपर वाला राइट में, नीचे वाला लेफ्ट में। अगर खाली वैल्यूज दिया है तो बड़ा वैल्यू वाला, छोटा वैल्यू। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आपको एग्जाम में मैं ना आपको ऐसे चार वैल्यू दे दूंगा, चलो। ये मैंने एक दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। ये चारों में कौन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसका वैल्यू बड़ा, वो सबसे पावरफुल। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार वैल्यू आई विल गिव यू, विल बी एबल टू डू इट? या तो बेटा मैं आपको बोलूंगा, अमंग दिस फोर हु इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका वैल्यू छोटा। इजी। नेगेटिव भी हो सकता है, देख लो बेटा। तो देख यहाँ पे बेटा, ये दिख रहा है एरो, दिख रहा है बेटा डाउन, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो पावरफुल कौन सा एजेंट है, बोलो बेटा। नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट। और ऊपर वाला पावरफुल विच एजेंट? ऑक्सीडाइज। बड़ा वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोसेस रिडक्शन। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, ये देखो बेटा ऐसा। ये इतना सारा मैंने वैल्यू दिया है बेटा, देख रहा है? डायरेक्टली आप मेरे को बताओ कौन पावरफुल बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हु विल बी द मोस्ट पावरफुल। ये चारों का सबका वैल्यू दे दिया है, किसका वैल्यू सबसे बड़ा नजर आ रहा है आपको, बताओ। लास्ट वाला कैसे है, ये देख, तो देखिए सबसे पावरफुल। अब समझ में आ गया कौन सा एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग। अभी मैंने तुमको बोला कौन सा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा नहीं, देख किसका सबसे वैल्यू कम है। हाँ, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है ना बेटा। कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, विल यू बी एबल टू डू इट? बड़ा वैल्यू हो बेटा क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छोटा वैल्यू होगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग। अभी आपको पता चलेगा कौन राइट में जाएगा, कौन लेफ्ट में। मैंने कोई भी ऐसा दो वैल्यू दिया है, सपोज मैंने सीरीज नहीं दिया, दो का वैल्यू दिया, सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा, E0 जिंक इज, ऐसा दे दिया आपको 2, ऐसे, और एक वैल्यू बता रहा, E0 कॉपर इज 1, हु विल गो इन द राइट एंड हु विल गो इन द लेफ्ट। सॉरी, कॉपर का 3 दे दिया। बड़ा वैल्यू राइट में, छोटा वैल्यू। दिमाग चल रहा है? आज मैं कोई न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला, आज मैं खाली आपको पहला बेसिक्स पूरा कराने वाला हूँ। कितना दिमाग में जा रहा है अच्छे से? ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करना पड़ता है, हाइड्रोजन को हम लोग ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोला, समझा क्या? ओके। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों है वो समझाना बेटा, उसको लेके बाकी सबका रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बना वो भी समझा। बरोबर, एकदम फिट हो गया दिमाग में, बोलो। चलो, हु इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी आप कर पाओगे। अभी मैं आपको ना खाली एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बता देता हूँ बेटा। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
ये देखिए सॉल्ट ब्रिज ऐसा था बेटा, पढ़ा था ना सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम, देखो बेटा दिख रहा है कि नहीं, देख रहा है, ग्लास फुल प्लग, आगार आगार जेल, सैचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन, ये यूट्यूब है। अभी इसको उठा के बेटा दोनों में हाफ से लिया था ना मैंने, यहाँ पे क्या लिया था पता है ना बेटा, अरे यार सॉरी, ऐसा 2 कंटेनर लिया था। अब इन दोनों के अंदर ये सॉल्ट ब्रिज आप ऐसा डाल दो, कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे क्या था, कॉपर, ये इसको उठा के यहाँ पे डाला, दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर हम लोग ने ढूंढा भी, देख अननोन का, देख बेटा इसे हम लोग ढूंढ देते हैं। Standard hydrogen electrode. What is the reference electrode? Reference electrode is defined as an electrode whose potential is arbitrarily taken as, or it is SHE, standard hydrogen electrode. अभी देख स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है बेटा, ये देख ऐसा है। देख इसमें क्या है, यहाँ पर HCl सोल्यूशन है, हम लोग ने HCl सोल्यूशन लिया है, उसका कितना है कॉन्सेंट्रेशन 1। यहाँ पे से मैं प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस डाल रहा हूँ 1 एटमॉस्फेयर वाला इसमें से डाल। यहाँ पे बेटा मैंने एक प्लेटिनाइज प्लेट लिखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस में 1 एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। HCl, यहाँ पे मैंने HCl सोल्यूशन लिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलार होना चाहिए, ना कम या ज्यादा। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। अच्छा गैस में कभी करंट पास हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसलिए बेटा मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्लेटिनम वायर। क्या लिया है, प्लेटिनम वायर मैंने लिया है, देख रहा है ये प्लेटिनम वायर है। फिर आगे कॉपर लगा है, लेकिन वो प्लेटिनम वायर मैंने यहाँ लिया है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट के लिए। वाई प्लेटिनम वायर इज यूज, बिकॉज दिस इज विच इलेक्ट्रोड, गैस, गैस में करंट पास होगा क्या नहीं ना, तो मुझे वायर रखना पड़ेगा क्या नहीं कॉन्टैक्ट के लिए। अच्छा इसका पूरे का E0 कितना होगा, ये पूरे का E0 0। अब बेटा मुझे अननोन का ढूंढना है। सपोज अननोन कौन था बेटा, मैंने ले लिया जिंक। क्या ले लिया, ये देखिए जिंक लिया है मैंने। क्या लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मुझे कुछ तो वैल्यूज मिलेगी ना, वोल्टेज 0.734 ऐसा कुछ तो मिलेगा। तो ये जो वैल्यू हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 0, तो ये वैल्यू पूरा किसका है बेटा, जिंक का है। अब समझा। फिर मैं इसको निकाल के क्या लूंगा, अलग अलग लेते जाऊंगा, एल्यूमिनियम है, जिंक, कॉपर, ये वो सब ऐसे। अच्छा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैस इलेक्ट्रोड। इसमें सबसे पहले मैंने बाहर क्या लिया था, बोलो बेटा प्लेटिनम। प्लेटिनम किसके कांटेक्ट में है, बोलो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 एटमॉस्फेयर। फिर ये हाइड्रोजन गैस आगे जाके किसके कांटेक्ट में जा रहा है, बोलो बेटा, बोलना यहाँ पे क्या था, H+ ना। तो यहाँ पे वापिस एक वर्टिकल लाइन, क्यों, ये देखिए सॉलिड है, ये कौन है, गैस है, और वापिस ये कौन है, आयंस। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा मैं कब लिखूंगा, जब व्हेन इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, बट इफ इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगा, पहले कौन आएगा, बोलो बेटा, इसका रिवर्स प्लेटिनम, फिर क्या आएगा H2, फिर क्या आएगा H+। अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने किसके, इसको जिंक के साथ कनेक्ट किया था ना, तो ये तेरा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड था। जिंक का हम लोग कैसे लिखते थे, बोलो बेटा Zn, और क्या लिखते थे, Zn2+। इन दोनों को भी कौन कनेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ये, देखना कौन कनेक्ट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे ऐसा 2 वर्टिकल लाइन आता। अब समझा क्या, प्रणीत बेटा आर यू गेटिंग इट और नॉट, सो गया है क्या, हेलो प्रणीत, अवनी आर यू गेटिंग इट डियर, हेलो हाँ अवनी, सर, हाँ। Yes, अवनी, sir. जोया बेटा आर यू गेटिंग इट, जोया, Yes, sir. Yes, sir. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिमाग में गया। अच्छा बेटा ना डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने, डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा वी डोंट यूज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनी मोर एज रेफरेंस, व्हाई, उसका ड्रॉबैक है बेटा। अच्छा इन दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट मुझे हाइड्रोजन का क्या रखने का था, प्योर एंड ड्राई। फॉर यू नो हाइड्रोजन इज हाईली एक्सप्लोसिव, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। सेकेंड, in this entire experiment my concentration of hydro pressure should be how much beta, 1 atmosphere, so it is also difficult to maintain 1 atmosphere throughout the experiment। यहाँ पे H+ का कितना होना चाहिए था बेटा, 1 मोलार ना बेटा। लेकिन ये रिएक्शन जब होता है ना बेटा, तो H+ बेटा किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड इट विल फॉर्म H2। तो इसमें से ये H+ कम होते जाएगा कि नहीं, तो विल आई बी एबल टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, नो ना। तो देख व्हाट आर वाई हाइड्रोजन, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन हाइड्रोजन बेटा। अप्लीकेशन क्या था बोलो बेटा, प्राइमरी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर। देखना हम लोग ने जिंक का निकाला, फिर वो सीरीज बनाया रिएक्टिविटी से। ड्रॉबैक क्या है इसका, डिफिकल्टी, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स प्रेशर एज हाउ मच, 1 atmosphere throughout the experiment, and thirdly beta it is difficult to maintain the concentration of H+ ion at what, 1 molar, why, because
गैस बबल हो जाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट होके तो कम होते जाएगा कि नहीं बोलो, राइट। तो वैल्यू कम होते जाएगी। ये चलो अभी अभी आप गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो ओके, if you will see my notes, I have given you here heading after, directly after this बेटा, क्या दिया बेटा, व्हाट इज द हेडिंग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। आज हम लोग ने सबसे पहले क्या लिया था बोलो बेटा, पहला हम लोग लेते बेटा, ऐसा लिया था कि नहीं, डब्बे में कौन था बोलो बेटा, जिंक, और ये अंदर कौन था बोलो, Zn2+ था कि नहीं ये वाला। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मेटल मेटल आयन, मेटल इन मेटल आयन, मेटल इन। अच्छा तुमको पता है क्या बेटा, इलेक्ट्रोड कौन सा हमेशा ये लेफ्ट में होगा या राइट में, वो किससे डिपेंड करेगा, मैंने उसको किसके साथ कंबाइन किया है, अरे वो सीरीज में देखने का। तभी बेटा ये ए मेटल इन मेटल आयन, इफ इट इट कैन बी आइदर बोथ, इफ इट इज एट एनोड और इट कैन बी एट कैथोड। पूरे बुक में तुम्हारे सिर्फ कैथोड का ही दिया है, एनोड का दिया, एनोड में रहेगा तो इट विल बी अंडरगोइंग व्हाट बेटा, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड में रहेगा तो इट विल बी व्हाट, एनोड होगा तो वेयर इट विल बी, लेफ्ट हैंड साइड, हियर इट विल बी। तो सपोज बेटा इफ आई एम यूजिंग दिस एज एनोड, तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट, एम Mn+, बरोबर है। कैथोड में होता तो मेटल बाहर आता था और ये इसका उल्टा होता था कि नहीं बोलो बेटा, अरे कॉपर का हम लोग ने कैसा लिखा था, कॉपर कॉपर 2+, Zn2+, आर यू गेटिंग, इसका रिएक्शन क्या होगा, इससे ये बन रहा है, तो कैसे लिखेगी बोल बेटा, M is giving you Mn2+, +2 electron, it will lose electrons, so this is oxidation loss of electron बोलो। अबे ये Zn होता और ये Zn2+ होता तो मैं इसको कैसे लिखता बोलो बेटा, कम ऑन, Zn gives you Zn2+ +2 electron। लेकिन बेटा ये राइट में भी हो सकता था कि नहीं, जैसे कॉपर मैंने लिया था, राइट में होता तो ये कैसा लिखता था, मैं बोल राइट में रिडक्शन होगा कि नहीं बोलो बेटा, क्लियर। सपोज मैंने अगर ऐसा लिखा रहता कॉपर कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बनेगा, कॉपर, आर यू गेटिंग इट, मेटल इन मेटल आयन। सेकेंडली हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, गैस इलेक्ट्रोड, विच इलेक्ट्रोड बेटा, गैस इलेक्ट्रोड, विच इलेक्ट्रोड बेटा, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में हम लोग ने क्या पढ़ा बताओ बेटा, गैस इलेक्ट्रोड पहले ही देख ले, फिर बाकी सब देता हूँ तुझे। गैस इलेक्ट्रोड, गैस में हम लोगों ने क्या लिया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फर्स्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी व्हाट, हाउ वी कैन राइट बेटा, प्लेटिनम, यहाँ पे लेफ्ट में भी हो सकता था कि नहीं, फिर क्या आता था बोलो बेटा, हाइड्रोजन गैस, व्हेनेवर गैस इज देयर वी हैव टू मेंशन प्रेशर एंड इट इज इन कांटेक्ट विद व्हाट बेटा, H+। बट अगर ऐसा इसमें बेटा ये क्या ऑक्सीड, ये लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन विल गिव यू 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। बट ये राइट में होता तो उल्टा में लिखता था कि नहीं, तो 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन। ओके, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको 2 रिएक्शन दूंगा और बोलूंगा सेल बनाओ, क्या बनाओ, सेल, फॉर्म द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में आज मैं नहीं कराऊंगा, आज मैं खाली आपको ये प्रेजेंटेशन पे विल डू द हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल एंड देन विल स्टॉप। मैंने आपको ये रिएक्शन दिया Zn, आपको एग्जाम में इसमें क्या क्या पूछूंगा मैं बेटा, चलो पहले मैं बोलूंगा राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। अच्छा एनोड पे क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, ये Zn अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे क्या हो रहा है बोल बेटा, तो व्हाट इज हैपनिंग, Zn इज गिविंग व्हाट, ऑक्सीडेशन,
आरुष बेटा ये 2+ है यहाँ पे 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या होता है बोलो बेटा, रिडक्शन हो रहा है ना उसका चार्ज। अच्छा बेटा कभी भी हम लोग अभी ना नेट रिएक्शन लिखेंगे ना तो ये दोनों मिलकर अपने को ये आना चाहिए, दैट मीन्स यू आर राइट। वो आ रहा है कि नहीं? अच्छा नेट रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ उसको हम लोग एन बोलेगा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलो बेटा, 2। कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, 2 ना। अच्छा सेल बनाने का आरुष बेटा ये एनोड है, ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, लोन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे तो क्या लिखेगा बेटा, Zn इन कॉन्टेक्ट विद, राइट में कौन है, रिडक्शन ना, तो Cu2+ से क्या बन रहा है, Cu ना, Cu2+ से Cu बनेगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अच्छा कभी भी यूज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन लिख देने का, C1 C2 जो भी अगर एग्जाम में दिया रहेगा, 1 मोलर 2 मोलर। इज दिस क्लियर, राइट। अच्छा एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल इन नेट रिएक्शन। अब बेटा मैं तुमको ये वाला दे रहा हूँ, ये देख के बताओ मुझे इसमें। नेट रिएक्शन में कैंसिल होना चाहिए बेटा, ये याद रखो। तो देखो बेटा मैंने आपको देख हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड दिया, देख इट कैन बी यूज एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अरे मैंने जो दिया है ना बेटा टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला दिया मैंने, क्या बोला, लेकिन वो लेफ्ट में अगर होता या राइट में होता, मेटल इन मेटल आयन, देन वी डिड व्हाट, गैस इलेक्ट्रोड। दिख रहा है ना बेटा, ऐसे अलग अलग गैस इलेक्ट्रोड आपको नजर आएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन गैस में बेटा है ना, ऑक्सीजन होगा और OH- होगा, वो हम लोग ने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में बेटा, OH-, व्हेनेवर OH- इज देयर व्हिच गैस इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन। फिर आता है बेटा, ये सब नहीं है तुम लोगों को भी, डायरेक्टली मैं तुमको बताता हूँ ये वाला, इसमें तुम्हें कैसे करोगे बताओ मुझे। आई वॉन्ट यू टू मेक द सेल, ओनली सेल, हाँ, सेल बनाने को आना चाहिए आपको, सिर्फ सेल। चलो इसका मेरे को ओरली बताओ, सेल कैसे बनेगा। ये कैडमियम से क्या हो रहा है, हाँ तो ये कहाँ पे आएगा, CD लेफ्ट में आएगा, फिर CD2+, ये SN2+ से क्या हो रहा है बोल बेटा, हाँ क्या 0 हो रहा है ना, तो SN, ये रिडक्शन ऑन राइट हैंड साइड, दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, वर्टिकल लाइन, समझा कि नहीं। खाली सेल बनाने का बता रहा तुमको, फिलहाल मैं सिर्फ सेल बनाने का बता रहा हूँ। ओके अभी बेटा मैंने आपको उल्टा दिया है, ये निकल है, यहाँ पे निकल 2+ है, दो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है और एल्यूमिनियम, इसमें मैंने आपको बोला चलो व्हिच रिएक्शन इज टेक प्लेस एट एनोड, व्हिच रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड, एंड नेट रिएक्शन। अच्छा इससे नेट रिएक्शन से हम लोगों को ना एन का वैल्यू मिलेगा, एन कितना है वो। चलो बताओ क्या करेंगे आरुष, ये लेफ्ट वाला है तो क्या होगा, अरे लेफ्ट वाला हमेशा एन से क्या बनता है, तो Ni विल गिव यू Ni2++2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं बोल। अच्छा Al3+ से Al बनेगा कि नहीं आरुष, अरे हाँ, तो Al3+, हाँ, how many इलेक्ट्रॉन इट विल गेन, 3 ना, तो दिस इज रिडक्शन। बट बेटा मैंने क्या बोला, नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, नेट में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, तभी तो क्या करेगा बोल, नहीं नहीं एक एक नहीं आना ही नहीं चाहिए, तो अभी दोनों का कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेगा, वेरी गुड, तुम्हें 2 से करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 3, this will become 3 and this will become 6, this will become how much, and this will become 6 and this will become, तो अभी नेट रिएक्शन में करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो एन का वैल्यू कितना आएगा तेरा, समझा, व्हाट विल गेट बेटा, Ni+2Al3+ विल गिव यू, हाँ 3 Ni ना, अच्छा फिर 2L, ये कितना है यहाँ पे, समझा क्या, ये एन का वैल्यू कैसे आया वो समझाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बनाने को आएगा या सेल दिया रहेगा तो आप रिएक्शन लिख पाओगे, एन का वैल्यू ढूंढ पाओगे, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, नहीं चैट, क्या क्लास ओवर बेटा, ये समझा कि नहीं बेटा अच्छे से। चलो बेटा अभी आपको ना मैं एक बताता हूँ, आप मेरे को बताओ उसका क्या होगा।
2 मिनट रुक जा बेटा, जरा करवा देता। चलो खाली आप मेरे को इसमें से बताओ, हु इज द पावरफुल, इसमें से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, लोअर द वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू किसका है? के। समझ में आ गया ना? हायर वैल्यू होगा तो पावरफुल, सॉरी सॉरी क्या क्वेश्चन था बेटा, एक मिनट, नहीं नहीं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा बेटा? मैंने, अच्छा जिसका हायर वैल्यू रहता है वो रिडक्शन में जाता है, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी हाँ हाँ पाने ही, ये आएगा 161 है ना बेटा, 1.61। फिर इसमें पावरफुल तुमको क्या बताने का है? रिड्यूसिंग एजेंट, कम वैल्यू, किसका कम वैल्यू है सबसे? नहीं नहीं ये -1.66, ये दोनों दोनों सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए था, ये दोनों में से या इसको कैंसिल कर देते, ठीक है ना, एक वैल्यू होना चाहिए माइनस। क्लियर है? तो एरर है बेटा, वहां पे कुछ एरर है वैल्यू। चलो इसका सेल बनाओ तुम लोग ओरली, क्या बनेगा? ये दो रिएक्शन दिया है, सोच के बताओ कौन लेफ्ट में जाएगा कौन राइट में जाएगा, कौन लेफ्ट में जाएगा और कौन नेट नहीं, सेल बना। नेट रिएक्शन की, नेट तो क्या है, दो दिया हुआ है ना, नेट रिएक्शन भी करना पड़ेगा, और एन का वैल्यू कितना होगा वो बताओ। हाँ कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है कौन रिडक्शन में? Mg जीरो से प्लस, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? एनोड पे ना, तो Mg इधर आएगा। समझा क्या? ये देखना, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। हाँ वो वही तो मैं बता रहा हूँ कब से। Au3+ विल बिकम Au, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या डालेंगे? डबल वर्टिकल लाइन। समझा? क्लियर है? अच्छा नेट रिएक्शन करने का रहता तो क्या करते थे बोलो? इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? इसको किससे? तो कितना इलेक्ट्रॉन ये हो जाता दोनों? 6 6, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आया? दिमाग में जा रहा है? बोलो। अभी सुनो बेटा इधर, अभी मैंने जो आपको नोट्स दिया इधर पे आ जाओ, ये देखो बेटा। अभी ना और एक इलेक्ट्रोड होता है टाइप, खाली मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं बेटा मेटल एंड मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मेटल एंड मेटल, तो देखिए मेटल है मतलब ये सपोज अगर ये सिल्वर होता तो ये क्या हो जाता बोलो बेटा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पता है ना, इट इज इनसोल्यूबल, तो स्पेरिंग। और यहाँ पे ये कौन है? क्लोराइड होता। लेफ्ट में होता, राइट में होता तो उल्टा बस। फिर एक होता है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स में क्या रहेगा बेटा? एक ही का बेटा ना, बोथ आयंस विल बी देयर बेटा, इसमें फेरस से फेरिक, या तो उल्टा फेरिक से। अच्छा दोनों सोल्यूशन है, सोल्यूशन में करंट पास होगा तो आयंस, लेकिन कांटेक्ट के लिए मुझे बाहर से प्लेटिनम वायर डालना पड़ेगा कि नहीं? जिसमें भी वेरिएबल वैलेंसी होगा ना उसमें होगा वेरिएबल, Fe2+ Fe3+, Sn2+, Sn4+। ऑक्सीडेशन होगा तो लेफ्ट में आएगा, रिडक्शन होगा तो राइट में आएगा। अभी तुमको ना पहला फॉर्मूला बता देता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सम्स नहीं करा होगा बेटा। अच्छा E0 हाइड्रोजन का हमेशा कितना होता है? फिक्स होता है, एग्जाम में दिया हो या ना दिया हो कितना होगा? एग्जाम में पूछेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? E0 रिडक्शन राइट हैंड साइड एट व्हाट बेटा? कैथोड माइनस E0 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एनोड। ये जनरली बिगर वैल्यू होता है अनटिल एंड अनलेस वो लोग जबरदस्ती कुछ वैल्यू डाल के देगा तो। अच्छा सम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगा। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या होता है बेटा? वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बताना भूल गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या क्या पता चला बोलो? हाँ तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये रहा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलो बेटा। हम लोग ने अभी बनाया था ना, चलो जाने दो, ये सीरीज का एप्लीकेशन करते हैं। इससे हम लोग को क्या क्या पता चलता है बोलो बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रेंथ ऑफ
एंड देन वी कैन ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिएक्शन होने वाला है या नहीं, दोनों को ऐड कर दो। अगर आंसर तेरा पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन होगा, नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगा। क्लियर है? अगर डिफाइन करने को बोला तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ सीरीज इन विच द रिडक्शन पोटेंशियल आर अरेंज इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक ना? लोअर द वैल्यू ऑक्सीडेशन में जाएगा, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। बड़ा वैल्यू रहेगा वो रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। अभी मैं फॉर्मूला खाली आपको इंट्रोड्यूस करवा देता, चलो। कभी भी बेटा अगर एग्जाम में बोला डेरिवेशन कुछ पूछने नहीं वाले, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है। E0 सेल स्टैंडर्ड बोला तो E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड। फिर बाद में खाली ई सेल बोला या ईएमएफ बोला तो उसका फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? E0 सेल माइनस, ये बाहर करना वैल्यू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। अच्छा ये एन क्या था तुम्हारा बोलो? हम लोग ने अभी पढ़ाया था ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन। अच्छा ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए तुमको नेट रिएक्शन लिखने को आना चाहिए। अच्छा हम लोग किसको लेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी? ओनली एक्वस एंड गैस, ओनली एक्वस एंड, कोई भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा तो उसको लेने का नहीं। तो ये प्योर सॉलिड है उसको हम लोग नहीं लेते बेटा, प्योर लिक्विड है भी नहीं, खाली किसका लेने का बेटा? एक्वस एंड गैस। चलो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बेटा। इसमें से ये क्या है बोल बेटा? ये सॉलिड है, ये क्या है? एक्वस है। ये क्या है? गैस है, और ये भी एक्वस है। तो प्रोडक्ट में ये लोग है कि नहीं बोलो? प्रोडक्ट में गैस और एक्वस को ले गए कि नहीं? तो एक इसका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी, उसके बैलेंसिंग के लिए जो भी नंबर लिया वो लिखो। दिस इज गैस ना, तो प्रेशर ऑफ गैस रेस टू, बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिखते हैं ना। ये सॉलिड है, सॉलिड को मैं लूंगा क्या? होता है सॉलिड का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हाँ अभी एक्वस है ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट साइड में ना, तो देख। क्लियर है? अच्छा एक सेकंड, इसको अभी तुम लोग इसमें अप्लाई कर। सपोज मैंने अभी ये हम लोग ने इसका ढूंढा था ना, इसमें अगर मैंने बोला तो कैसे करोगे बोलो बेटा? Zn प्लस U2 प्लस gives you Zn2 प्लस। इसके लिए अगर मैंने आपको ये इक्वेशन लिखने बोला तो आप क्या लिखोगे बोलो बेटा? E सेल विल बी व्हाट? E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन कितना है तुम्हारा यहाँ पर? अरे तो ए बी टू तो नेट रिएक्शन में कितना कैंसिल होता था? 2, तो डिवाइड बाई 2। अभी प्रोडक्ट में कौन है बोलो बेटा? ये सॉलिड है, सॉलिड को तुम लोग लोगे क्या? नहीं ले लो, तो बचा कौन? Zn2 प्लस। नीचे क्या आएगा? इनके आगे कोई नंबर है क्या? नहीं ना, एग्जाम में इसका वैल्यू दिया होगा, इन दोनों का वैल्यू दिया होगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? ऐसा 0.01 ऐसा कुछ तो दिया रहे। अभी हम लोग ने ये किया था ना इसमें, इसका कैसे लिखते बोल बेटा? ये वाले का तुम्हारा एन में कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो बेटा? 6। तो ई सेल क्या हो जाएगा बोल बेटिया? E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन का वैल्यू कितना था आरुष? 6। 6 था ना? अरे ये 6 इलेक्ट्रॉन कट हुआ था। अभी प्रोडक्ट में कौन है? ये सॉलिड था, इसको लेगा नहीं। ये भी सॉलिड था, नहीं। प्रोडक्ट में कौन है? निकल है, निकल के आगे कोई नंबर है? तो Ni2 प्लस रेस टू 3 अपॉन एल्यूमिनियम के आगे कोई नंबर है? क्या करेंगे? एल्यूमिनियम 3 प्लस रेस टू। आर यू गेटिंग इट? ठीक है कि नहीं बोलो? सम्स आज करना है कि नेक्स्ट क्लास में करना है बोल दो। ठीक है, खाली फॉर्मूला देख लेते बेटा। ठीक। कभी कभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे ढूंढने के लिए, तो E0 सेल इज 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। कभी कभी आपको क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा G0 स्टैंडर्ड ढूंढने को बोलेंगे, तो क्या फॉर्मूला? माइनस NF E0 सेल माइनस NF। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल इन नेट रिएक्शन। व्हाट इज F? 96,500 कूलम। E0 सेल अपने को कहां से मिलेगा? ऊपर का फॉर्मूला है ना, वहां से मिलेगा, इधर से। दिखाई दे रहा है? खाली स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वर्ड नहीं रहेगा तो क्या लिखने का? डेल्टा G इजिकल टू माइनस NF E सेल।
डेल्टा ई सेल पॉजिटिव आएगा या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव आएगा तो ई सेल नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये कॉमन सेंस है ना, देखना यहाँ पे माइनस है, इसका तेरा ई सेल अगर नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? चलो अभी इधर पे तेरे को क्या क्या चाहिए बोल बेटा, फटाफट तेरा मैंने सब रेडी रखा। हाँ तूने भेजा, मैंने देखा। हाँ चले, ये पहला सम देख बेटा, इसमें क्या बोला है तुमको ढूंढने के लिए? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है ढूंढने के लिए? हाँ स्टैंडर्ड सेल और रिएक्शन दे दिया। स्टैंडर्ड सेल दिया और क्या बोल दिया? रिएक्शन दिया। एक छोटा सम कर दे। चल पहले मेरे को बता, ये लोग ने वैल्यू दे दिया है बेटा। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? ई जीरो सेल इज व्हाट बेटा? बोलो ना। ई जीरो राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो। अच्छा राइट हैंड साइड में बेटा, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? ये तेरा क्या होता था? एनोड, सॉरी कैथोड, कैथोड। और ये तेरा क्या होता था? अच्छा ये निकल से निकल 2+ हो रहा है, मतलब ये तेरा कौन सा है बोलो बेटा? एनोड है ना। और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, तो यहाँ पे कैथोड पे कौन आएगा बोलो बेटा? एल्यूमिनियम, ई जीरो। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बोलो बेटा? निकल। अब इसका वैल्यू वो लोग ने दे दिया बेटा डायरेक्टली। ये लोग ने पर्पसली देख उल्टा वैल्यू दिया बेटा, याद रख। माइनस ऑफ माइनस पॉइंट, तो आंसर तेरा ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा तेरा? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझा ना? देख बेटा नेगेटिव है ना। अच्छा इसका क्या करेगा बोल बेटा? यहाँ पे तेरे को दो वैल्यू दे दिया है। हाँ इसी का बेटा, अरे कुछ नहीं, खाली ओरली करने का, ई जीरो ढूंढने का। ई जीरो का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? हाँ राइट हैंड साइड माइनस। अभी लोग ने तेरे को बोला ही नहीं कौन लेफ्ट है कौन राइट है, तो खाली ऐसा ही नोटेशन दिया है। तो मैंने तेरे को क्या बोला था जनरली? ये वाला बेड क्या होता है? बिगर। तो दोनों में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ई जीरो कोबाल्ट माइनस ई जीरो एम एन। बराबर है बेटा। हाँ तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा? देख बेटा ये आया कि नहीं, देखना। और स्पॉन्टेनियस। अच्छा सेल बनाने को बोलेगा तो बना सकता है कि नहीं? तेरे को पता नहीं कौन राइट में कौन लेफ्ट में, लेकिन किसका वैल्यू बड़ा है? हाँ तो बड़ा वाला हमेशा किस में जाता है? रिडक्शन ना, तो राइट में जाएगा। तो एम एन तेरा कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट में ना। अब इन दोनों को कनेक्ट करें, अब समझा क्या? बड़ा वैल्यू राइट में ही जाएगा ना। क्लियर? अच्छा ये रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना होता है बोल बेटा? ये 3 है, ये 2 है, तो देखना इसको 3 से तो 6। क्लियर है? तो चलो बेटा यहाँ तक ही मैं कराता हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में बेटा प्लीज ये फॉर्मूला कर अच्छा से करके आना, तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पूरा। नेक्स्ट क्लास अभी करेंगे ना बेटा हम लोग? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्यों बे? एक क्लास और होगा ना अपना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? हमें पूरा 20th से छुट्टी। हाँ तो 20th से ना, तो अभी 20। तो अभी आज 17। तो फिर यार ये लोग को नहीं, तुम लोग को आना, तुम लोग मैं ये भवंस वाली एक क्लास के लिए आना, तुम्हारा चैप्टर में खत्म कराऊंगा। चलो बाय बाय। बाय बाय।